Kotak is on fire. फ्रेंड्स, स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, मैंने भी किया है। So hey everyone, this is Jonathan here and from team Apex Gaming. रोल का तो यार मुझे पता नहीं, बट मेरा रोल है जो दिखे उसको मारना। Are you ready for BGMS Season 5? Yes, I'm super excited to be here. First tournament हमारा like as a team it was quite good. We came #5 in BMBS and now it's BGMS. So we are just trying our best to do give 100%. Team का नाम Apex क्यों? What is the story behind the name? देखो Apex के पीछे यार काफी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे कि क्या नाम रखना है। आफ्टर अ लॉन्ग सोचने के बाद वी केम अप विद दिस नेम दैट्स एपेक्स एंड एपेक्स का मतलब है ऑन टॉप एंड आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग ऑन टॉप टिल आई एम वर्किंग टुवर्ड इट। जॉनी, 2024 में भी आप जेली के साथ थे और 2026 में भी। What makes you continue trusting and playing with Jelly? जेली का टू बी ऑनेस्ट नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग से एंड आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद हिम। तो वही टाइम पे मेरा यही था कि डायरेक्टली द नेक्स्ट आईजीएल इज जेली एंड आई थिंक लाइक वी कैन डू वंडर्स टुगेदर। अगर आप पास्ट जॉनी और 2026 के जॉनी को कंपेयर करें, what's the biggest change? अभी आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज एंड पहले आई वाज लाइक just a player. Lots of things have changed and it's going to be a new journey for me also. Let's see how it goes. आपने प्रेशर की बात की। Under that pressure, can Jonathan still stay on top? Pressure is a privilege and I'm very happy to have that. It's been a while कि I've been into this scene and I can say I'm I'm used to all this pressure and all. So I'd say कि यार ऐसे कुछ होता तो नहीं। I just love being in that situation and handling that situation perfect. Expectations आपसे और टीम से हमेशा हाई रहती हैं। Can you deliver on them in Season 5? As I always say, बोल के नहीं करके दिखाएंगे। तो yeah, we are just working hard as a team. जो भी हमने mistakes करी है अभी past tournaments में, कि for example casualties लेना, like वो सब करना। तो if we don't do that, I'm sure we are gonna do really well in this tournament. टीम में काफी चेंजेस के बाद भी परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग रही हैं, but the podium is still missing. What changes this season? As I said, casualties and trusting each other, believing in each other. So if these things and plus bonding, and it's been like just I guess 3-4 months I guess with this team. So it's all about time, and I'm sure जितना time हम spend करेंगे एक में के साथ, play with each other, get to know each other, it's gonna be super fun and we'll do much better in the upcoming tournament. Season 1 में you came very close to the trophy. क्या Season 5 में we'll see that same Jonathan pushing for the title again? I don't know to be honest. मैं हर बार close आके रह जाता हूँ, but let's see. I guess God has different plans for me. So let's see how it goes and just fingers crossed. That's it. Any final message for your fans, family, and everyone who has supported you? You guys are the reason I'm here, which helps me keep going ahead, pushing my limits, and that's why I'm here. अगर आप लोग नहीं रहते, I wouldn't be here. So thank you so much for all the support. Keep supporting अपने सारे बंदों को and TAG on top. कर रही है again all the way down south. छोटे मुंह में आ गए थे टीम। Looking at this scenario, Revenant X-Pac वर्सेस टैग के बीच में फायदा उठा सकती है यहाँ पे टीम Revenant X-Pac, पर निंजा का नॉक टीम को चुभेगा जरूर, पर प्रोटॉन एंड ट्रेस दोनों की गाड़ी में कोलिजन होता है। ट्रेस काफी ज्यादा ओपन के अंदर पकड़े जा सकते हैं, आसान होगा नहीं। अगर इस सिचुएशन से ये बचते हैं फायदा जरूर होगा, बट पीछे से दीपक नेगी वो भी इस महफिल का हिस्सा बनना चाहेंगे। Revenant X-Pac उन्होंने अपने हाथों से ये पूरा गेम बिगाड़ा है। ट्रेस और प्रोटॉन की गाड़ी नहीं टकराती, ट्रेस ओपन में पकड़े नहीं जाते, निंजा को कवर मिल जाता और एक और गेम Revenant X-Pac के हाथों से छूटता हुआ। एंड इसके बीच में जो वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए, हाँ सेंसे ओपन में पकड़े गए और उसके साथ साथ क्या परफेक्ट स्प्रे था। जेली की को नॉक मिला, वो सबसे बड़ा मौका बन सकता है छोड़ते हुए, पर टैग क्या खेल रहे हैं। एक चीज बोल सकते हैं कि टैग के खिलाड़ी है ना भाई, इनके पॉइंट टेबल पे कहीं पे भी हो, इनका कितनी ट्रॉफी से फर्क पड़ता नहीं है। फायर पावर मजबूत है भाई, सटीक स्प्रे टिकाया है ना जेली ने। जिस दिन यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स में है स्प्रे गॉड, पर जेली ने जो काम करा है स्प्रे गॉड वाला काम कर दिया है। बड़े सिचुएशन के अंदर पूरे साल इंतजार करती है हमारी कम्युनिटी अगस्त के महीने का, जहाँ पर मास्टर सीरीज
सामने आता है, बट टोटन ओपन के अंदर ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। सामने अगर टैग बैठी है तो ऊपर से जेली टैग वालों का थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। दिखा रहा है और काना की पोजीशन भी काफी लाजमी है और तो कहना पड़ेगा गोली के साथ काना का भी खात्मा। सोल मर गई तो बहुत बीटी है, मैं बहुत पार्टी कैसे करूं? कितनी कोशिश करे वो मैन ओह माय गॉड, टैग इज ऑन फायर। क्या टैग रीसेट कर सकती है? क्या वो हील अप करके गेम के अंदर वापस कर फायर सकती है? बेबी। सबसे बड़ा मौका नेबुला भाई के पास टैग है, वाला का चाहे बहुत तो हो रहा है इसे अब। पार्टी कर सकते हैं बट अब पता है इंस्टेंटली उनको बाहर भी कर नाउ दिया। आई गोटा यूज माय नाउ आई गोटा यूज तो माय ये अपने पावर। पता है ये चिकन किसका होने वाला है? गैंग अच्छा, रॉयल गैंग चैलेंज किसका और होने वाला है? क्वांटम फ्रॉग। ओह गैंग ये चिकन है ना, इट्स टी। भाई साउंड क्या क्या है हुआ? क्या? कास्टिंग। और यहाँ पे क्रेटोस पूरा गाड़ी के पीछे बैठ के गुद्दी लाल करने की तैयारी में है पूरा टीएजी का। टीएजी वालों ने तब से अपनी सुतली बॉम्ब जो चालू कर रखी है, इन्होंने पूरे लॉबी की भुस्सी भर रखी है। पता नहीं कहाँ से आते हुए टीएजी वाले, इनको हमने पूरा सपोर्ट किया अपने वॉच पार्टी, बट ये हमारे ही गांड में हमारे ही गाफ में घुसना चाहते हैं। जब देखो भाईचारा हमने अपने एंड से मेंटेन कर रखा था आरएनटीएक्स वालों ने, बट पता नहीं टीएजी वालों को ऐसा कौन सा शौक चढ़ा है कि वक्त वक्त पर आते ही पलट जाते हैं और हमारी ही गांड मार देते हैं। अभी भी निंजा ने इन्हें कुछ नहीं करा था, बस एक नेट डाल रहा था, उसके बाद भी निंजा को इन लोगों ने धर दबोचा और बहुत बेरहमी से, बहुत कत्लेआम तरीके से उसे नॉक करा। यहाँ पे जोनाथन गेमिंग आगे बढ़ते हुए लग रहा है इन्हें वापस से टॉप फ्रैगर के रेस में आगे बढ़ना है। और ये चिकन में अगर नाम ले लूँ यहाँ पे कि किसका चिकन होने वाला है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो मुझे गाली देने की कोशिश करेंगे, बट मुझे डर नहीं लगता। और इस स्पीड में जो आगे बढ़ रहे हैं हर्ष और जेली, मुझे लग रहा है कि चिकन डिनर बहुत खतरे में है गैंग। और अबे भी अब तो ज्यादा बोल ही बैटल आ सकता हूँ चुकी है। यार, ये तो अब मात्र ये दो तो खिलाड़ी, obvious है डोमी भाई। और क्रेटोस, और उनके सामने चार दिग्गज गैंग। जेली, जोनाथन, ये तो ऑब्वियस है हर्ष और भाई। हाइड्रो। अब तो मैं हर बोल खिलाड़ी देता हूँ ना, में धूप चल रही है। बोल देता अभी हूँ। मैं ये बस नहीं देखना चाहता, बोल देता हूँ यार, प्लीज। टैग जीते थे, टैग को जोन की जरूरत है। अगर जोन में सपोर्ट मिलेगा बात जरूर होगी, बट जोनाथन क्या रशियन करा है, एक गोली का कनेक्शन नहीं बना दिया सामने वाले को, और वो कंफर्मेशन निकाल कर अब बोलने दो ना भाई, उसको रीसेट नहीं दे पाएंगे। बोलने दो ना भाई, जोनाथन भी कह रहा है इसकी वजह से अब दोनों साइड पे टैग बोलने दो ना। एपेक्स गेमिंग का दबदबा होने वाला है। मैंने कुछ बोल रहा, मैंने कुछ बोल रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं तेरी गांड मार दूंगा मैं हेक्टर। नॉट मी, नॉट क्या वो मी। डिफेंस कन्वर्ट करते हैं नहीं हेक्टर, करते, बट अच्छी गांड में हेक्टर में तेरी गांड मार सकती है वो ग्रेनेड। ईस्ट ने डॉज जरूर करा है, बट मुझे लगता है कि हाइड्रो उस 1v1 में जरूर जाएगी। शॉटगन निकाली जरूर है पेड़ के आसपास, और एक एक कर कर वो फायदा निकाला। भाई किसने बोला था? Assista। भाई मैंने नहीं बोला। बहुत बढ़िया तरीके से टैग को उन्होंने रोका। मैंने नहीं बोला। Instantly 2-3 प्लेयर्स आप- को गिरा दिया और आप अब लोग अबे मैंने बोला, मैंने कहा बोला, मैंने कहा बोला, मैंने कहा बोला, मैंने बोला एक बार भी, मैंने एक बार भी बोला। सही तरीके से किया था, अरे लेकिन मैंने आखिर कहा जाके बोला जो भाई। बीस्ट ने पोजीशन कास्टर ने बोला भाई, कास्टर ने बोला। से फाइट लेने सारे वो रेश और zone के अंदर जली entry ले आजू-बाजू आ सकते गए। हैं। नाइस जैसे वन कि रे यार, AD बढ़िया। Revenant की बात करी, दोनों टीम्स का आमना W's। सामना सदर्न एज पे होता चलो। है ऑलरेडी देयर, और जेली की दाद देना चाहूंगा। नाइस वन, और एक खिलाया। एडीएस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना लास्ट कोई रह तो गया। देख रहा होगा इनकी तरफ, एंड ही गोज आफ्टर देम अकेले इंस्टेंटली। नहीं, हाइड्रो। बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम, बढ़िया, पर बढ़िया। निंजा दैट यू हैव टू गो अप अगेंस्ट। किल गया, लास्ट वाला किल अपने को नहीं आया। टीएजी की टाइमिंग पूरी ऑफ थ्रो करी, और वाइल्ड फैंग यार, बराबर जगह HP मिली है बाकी ऊपर की, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई फाइट लेना पड़ेगा। तो ऊपर चढ़ गए यहाँ पर, देखा ही नहीं। बढ़िया। दिक्कत हो सकती है, बट टाइम ने वो रिएक्शन दिया, वो ऑटोमेटिक शॉटगन का फायदा उठाया, और मैं तारिस के ऊपर Nice one, एडवांटेज भगा बनाएंगे। दिया बट उनको। प्रॉब्लम की बात ये है कि मिड को खुशी बैकलाइन से Nice टैग one, और एक है। ने कांस्टेंट सप्रेस कर रखा है, और सिनेरियो में बचना वाज इम्पॉसिबल। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर। और आपको भी पता है टैग के खिलाड़ियों के नीचे स्केट्स लगे हैं, जब वो फिनिशर्स ढूंढते हैं वो रुकते नहीं है, वो स्टॉम्प करते हैं सीधा। जी बिल्कुल, और इस समय आई थिंक अरे, मिड के लिए मेरे को मार बहुत दिया, बुरा मार लग रहा है, बिकॉज़ इसे कहते हैं नाइस बहुत ही वन जूसी टेस्ट भाई, गुट्टे मार सैंडविच। दिया। रैपिड chaos के अगेंस्ट, जो कि सर्कल के सेंटर में हाई प्रायोरिटी पोजीशन होल्ड इन्होंने करके ना बैठे किल लिया दूर का। थे, उनसे फाइट जीतते यार, अपने वाली किल छुड़ाओ। अनुज 2 is down on his knees, और EG के एगी अरे यार, इस एक समय HP रह कोशिश गया, कर रहे एक हैं नेट कर White दो। Flags को परेशान करने की। वहीं जैसे हम बात कर रहे थे, आई थिंक बाकी लॉबी को भी अरे, रियलाइज हो गया कि अरे, Springboard आपने अभी पे तक utils जिंदा नहीं है रहते हैं।
और अपने जैसा गोल आपने बोला नाइस था, वन EG रे सब ड्रीम्स। कुछ चंगा सी बट ज्यादा देर रहता नहीं है। बढ़िया। वो क्लोजर के अंदर ये ठीक है ना चीज़ ब्रो, अब भी तो करती है। 3v3 वर्सेस 1 है। शुरुआत करी थी रैपिड ड्रीम्स के के साथ, एक वो खिलाड़ी ड्रीम्स बैठे हैं, वो सक्सेसफुली कर सकते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। स्नोजॉट का नेट ओपनिंग मिल चुकी है फाइट पे, नहीं हर्ष यार। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पुश करने की गलती, एंड ही गोस डाउन एज वेल। अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल है, ये क्या व्हाट वाज दैट, पूरी की पूरी K9 Esports out of nowhere, they are gone। अब 1v1 है यार, एंड इसमें वाइट नेट बहुत है। फोकस ड्रीम्स का ये नेट अगर परफेक्टली लैंड किया शायद ये बहुत गेम यहाँ अच्छा बन है। सकता है, बट K9 Esports क्या था ये। हाइड्रो ने क्या मारा है और एक केना ने मौका था क्या उनके चोट पास, किया उस मौके पे वो फायदा नहीं निकाल पाए। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि हाइड्रो यहाँ पर रिवाइवल की तरफ, दुश्मन कहाँ मौजूद है इसके पीछे। ये तीसरा ग्रेनेड रहेगा ड्रीम्स का, डैमेज जरूर इन्फेक्ट करा बच गए पास बट वो डैमेज काफी नहीं है। वेस्ट वो डैमेज है, तो ड्रॉप लूट देख में कर तो नहीं। वो डायरेक्ट अप्रोच तो जरूर बैन करी, बट हाइड्रो इस खिलाड़ी के लिए भाई ये देखिए, गेम खत्म कितना कर ज्यादा देगा मुश्किल हो चुका है। बैंडेज में बैंडेज लगा के आगे जाना पड़ेगा। और आई खत्म थिंक कर दे भाई। ड्रीम्स क्या उन्होंने ये इस चीज का भाई। मुआयना है, भाप लिया है कि हाइड्रो ड्रॉप के पीछे है और जोन अब उनको पुश करने वाला है। ओवर के अंदर जिगल करके जाने की कोशिश है, 416 अरे वो नहीं सिलेक्शन यार। की फाइट इस रेस के भाई अंदर उसने क्या क्या बात है मारा? हाइड्रो की सारी मेहनत यहाँ पे फेल होगी। बस फाइट फोकस अरे रे रे रे, हाइड्रो ने मारा अच्छा, नाइस वन है इसके लिए बट इस चिकन डिनर को क्या मारा उसने? Three man chicken. ऑलमोस्ट चिकन अपना था बट Still walking away with the win. उसने नेड वगैरह होता I है एक think दो वो फाइट हाइड्रो ले लेता। गेम में ड्रीम्स गेम से कैसे मार सकता है वो बहुत ऐसा? ही ज्यादा ड्रीम्स बढ़िया ने क्या टाइम किया, बिल्कुल perfect आराम से pick उड़ करी, गया, थर्ड लेकिन पार्टी मारी, चिकन ले गया। मेरे को ये डर था ड्रीम्स replay कुछ ना देखना है करे। कि सारे प्लेयर्स बाहर रिकॉर्ड हो रहे हैं, टू जोन से आएंगे बट एज ऑलवेज रोंडो की जो प्रथा है, जैसे ही जमीन पे इनके कदम छूते अरे? हैं वो गोलियां बारी चालू हो जाती है। बट हाइड्रो अफसोस वो छत से बस नीचे ही आए थे और उनका पहला जीवन यहीं पे व्यर्थ हो गया और मल्टीपल फ्लैग किलर लग चुकी है। ओ हर्ष टैप अवे करते हुए ही अपनी भाई, टीम के लिए उनका भाई। पहला पिक निकाला। 2 प्लेयर्स का नुकसान अर्ली टीएजी को लेना पड़ा इस मैच में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। He's found decent weaponry भाई हम at least in early हमरा fights। kill आ रहे के दिन टीएजी एक अबे, बहुत सोल भी उतर गई तेरी। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रही थी। रोंडो पे टॉप 3 हमें नजर आए थे, आज भी वही सेम चीज करने की कोशिश। रिकॉल प्लेयर की बात करें तो जिडेना सिटी, वहां पे टीएजी यार, हमारा फिलहाल क्यों- हर्ष इस समय न्यू एक्स फैक्ट्री में, ही इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फ्रॉम हिज रोस्टर। सोल ने भी काफी अर्ली फिनिश ग्रैब कर रहे हैं और ये क्या मौका था भरपूर एक भाई यार, फ्रैग हमारा के अंदर जाकर अपने आप को सेफ रीजन में पहुंचाने में वाह। काबिल हुआ जरूर। भाई को चाहेंगे कि ये नॉक उनके फेवर में आए, बढ़िया। ऑलरेडी उनके लिए परेशानियां बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अबे चैट कुछ ईजी और रैपिड कियोस कहीं ना कहीं हो सकती है। इजी नहीं होता क्योंकि वो विंडो छोटा रहता है, दिख रहा है। बट जो प्रोफेशनल प्लेयर्स लोग हैं वो स्किन डाउनलोड करके नहीं रखते, तो उनको तरीके तो स्किन नहीं जरूर दिखती, ढूंढने उनको सीधा पड़ेंगे नॉर्मल चीज़ को। कूप दिखता है। तो जो जोन की करवट है इसको समझे? संभाल पाना, इसको अडेप्ट कर पाना आसान होने वाला नहीं है। तो जहाँ पे ड्रॉप करा था, जहाँ पे रोटेट करा, जमीन आसमान का फर्क। बट इस वक्त अबे इस हाइड्रो? सिनेरियो में एजी से काफी ज्यादा दूर अरीब और नॉक हो चुके हैं और लॉबस्टर से भी काफी ज्यादा शॉट्स लिए गए हैं। एपिक्स गेमिंग काफी बढ़िया शुरुआत, 5 रेसेस ऑलरेडी हैं हर्ष के पास, लाइनअप के पास, हर्ष के पास 3 और अभी हाइड्रो को रिवाइव देना भी उनकी प्रायोरिटी अबे रहने क्या वाली है। कर रहे हैं भाई? लॉबस्टर टीम के स्टार प्लेयर, लास्ट प्लेयर, और वेल वेट अ मिनट, ये तो नोटिस ही नहीं किया था कि वो लमाओ की हुई है आज लॉबी के अंदर वापसी। ही इज ओ भाई। यूटिलिटी के साथ डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं ग्लैडिएटर। लक ये फाइट नहीं जल्दी भाई, से जल्दी खत्म पोस्टिंग करनी खराब पड़ेगी, है। बट गेस व्हाट प्लान्स ऑफ बीच रोटेशन में रोका गया टीएजी, एक बहुत बड़ी गलती बैकलाइन पे। एक और नॉक, जेली भी टेक डाउन हो चुके हैं और ये क्या ब्लिंकेट एंड यू मिस इट। टीएजी क्रेजी डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। सोल की तरफ से काफी अबे समझ नहीं आया assault कि मैं तेज बोलूंगा, तेज मार दिया बिल्कुल मैं। ओपन में धर दबोचा प्लेयर्स को। इससे पहले रिएक्ट करके अबे कर पाते, मैंने बस हेलो लाइक बोला। सोल ने बोला आप रिएक्शन दीजिए, उतने लेकिन ऑफ में कॉम्स। जो रीसेट नेबुला चाहती थी, अफसोस अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे है। अकेला TG खिलाड़ी versus स्ट्रेंजर चाहे तो TG नेबुला की versus- काया पलट कर सकता है। दूर दरार ये जो फीनिक्स है वो रिवाइव कर पाएंगे, वहीं से पूरी जो कमान है वो संभाली जाएगी। बट स्ट्रेंजर जाते जाते वो फिनिशेस का काउंटर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। नोबी वो भी ब्लीड कर रहे हैं। नेबुला के लिए जो चीजें हैं ना वो सडनली बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। जी बिल्कुल, वो थर्ड पार्टी और अब विशिष्ट ई स्पोर्ट का थर्ड पार्टी। नेबुला तो परेशान हो ही रही है, बट उनके साथ रेवेनेंट एक्सपार्क, उनकी भी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
दो प्लेयर बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फ्रेंड्स, आप भी जोनाथन भाई के फैन हो तो स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो।